4 بجے سے کی کلاسز شروع ہوتی ہے. یہاں پہ 3 کلاسز ہے ہمارے, 4 سے لے کے عشاء تک. عشاء کے بعد طالب بالغان کی ایک کلاس ہے, جو بڑے حضرات جو کام وغیرہ جاتے ہیں, جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا, ان کے لیے ایک نظام الگ سے ہے. میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ہر آدمی زیادہ تر کیا سمجھتا ہے کہ مدرسے میں غریب بچے پڑھنا, جو دنیائی تعلیم نہیں کرتے وہ بچے پڑھنا, یہ زیادہ تر ذہن سب کا یہ ہے. لیکن میں الحمدللہ میں ایک جوائنٹ فیملی سے ایک الحمدللہ اچھا بزنس مین ہوں. میں میرے بچے کو یہ تعلیم دیا. آج کی دنیائی ماحول بہت خراب ہے. ایسے بچے جو انٹرنیشنل اسکول سے بھی ہمارے مدرسے میں آ کے داخلے لے رہے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ نے بچے کے انٹرویو میں سنا کہ والمنٹ اسکولز کا ایک بچہ ہے, اور ایک ایسے بہترین اسکولز جو ہے وہاں سے بچے آ رہے ہیں ہمارے مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اقبال احمد مکہ مسجد کا جوائنٹ سیکرٹری بول رہا ہوں. آج کا جو جلسہ تھا نہایت ہی کامیاب جلسہ تھا. ہمارے مدرسے کے جو صدر اور جو کمیٹی ہے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس بار یہ 2 بچوں کے لیے جو حفظ کے بچے حفظ کیے تھے ان کے لیے عمرے کا بھی پیکیج دے رہے ہیں. بہت ہی محنت سے بہت اس سے کام کر رہے ہیں لوگ. اللہ ان کے عمرہ میں برکت دے, جوش و خروش سے کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کے عمر میں صحت میں سب اور ترقی دے. آمین آمین. کیا لگتا ہے اسی کمیٹی ہر مسجد میں؟ ضرور ضرور. نوجوانوں کی جو محنت ہے بہت زیادہ محنت ہے نوجوانوں کی. یہاں پہ جو مدنی دسترخوان چل رہا ہے ان کے وہ بھی ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. کمیٹی مسجد بڑی کمیٹی جو ہماری ہے وہ بھی ان کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ ہمیشہ تیار ہیں. کیا کہنا چاہیں کمیٹی کے کیا میں چلو پورا ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ نوجوانوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. نوجوانوں کو جمع لے کے ساتھ کر کے ان کو آگے چھوڑ کے ہم لوگوں کو پیچھے رہنا چاہیے. ان کی سرپرستی کرنا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسجد کنسٹرکشن کمیٹی کا ایک اسٹیجرر ہوں. تو ہم لوگ بہت سارے مدرسے سب چل رہے تھے, مگر ہمارا عاطف ہے نا, آنے کے بعد میں تو ایک دم فل زوم چل رہا ہے مدرسہ, اور نیچے بھی پورا رینویشن یہ وہ سب پورا کر کے بہت اچھے اس سے چل رہے ہیں. ہمارے مسجد کمیٹی سے ان لوگوں کو جو کچھ بھی یہ ہے وہ انشاءاللہ تعاون کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے 2015 سے اس کمیٹی میں کام شروع کیے ہیں. اصل میں مکہ مسجد نیل سینٹر بنگلور, یہ کمیٹی مسجد اور مدرسہ دونوں کا نظام وہی کرتے تھے. الحمدللہ 2015 سے تقریباً 8 یا 9 سال سے وہ کمیٹی نے, مدرسے کی کمیٹی ایک الگ نظام بنا کے ہم نوجوانوں کو اس کمیٹی میں ایک موقع عطا کیے. تو الحمدللہ ہم اس وقت سے کام کر رہے ہیں. 8 سال سے ہماری اس کمیٹی کا شروعات ہوئی اور الحمدللہ اب تک ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. کیا کام ہے ہمارا یہ ادارہ جامعہ مدینہ العلوم مکہ مسجد کے انڈر جو ہے, ہم مکتب اور حفظ کا نظام چلاتے ہیں. اس میں ہمارے مکتب میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا, مکتب میں صرف اسکولز کے بچے جو آتے ہیں 4 بجے سے ان کی کلاسز شروع ہوتی ہے. یہاں پہ 3 کلاسز ہے ہمارے, 4 سے لے کے عشاء تک. عشاء کے بعد طالب بالغان کی ایک کلاس ہے, جو بڑے حضرات جو کام وغیرہ جاتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا ان کے لیے ایک نظام الگ سے ہے. وہ عشاء کے بعد, وہ بھی تقریباً 15 یا 20 سال سے چل رہا ہے وہ نظام اس مسجد میں. الحمدللہ وہ ایک شعبہ ہے ہمارا. حفظ کا ایک شعبہ ہے. ہمارے اس جامعہ مدینہ العلوم کا اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مدرسہ ہے, ہمارے مدرسے میں ہم صرف اور صرف اسکولز کے بچے جو ہیں جو حفظ کرنا چاہتے ہیں, ماں باپ ان کو حفظ کرانا چاہتے ہیں اور وہ کر نہیں پاتے. وجہ یہ ہے کہ قیام اور تام یہ ہے کہ بچوں کو وہیں پہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں, حافظ بنا نہیں سکتے. تو اس ایک نیا انوویٹو آئیڈیا لا کے ہم پورے نوجوانوں نے, ہمارے حضرت مفتی صاحب ظہیر صاحب کے ساتھ مل کر ہم اس آئیڈیا کو, جو بچے اسکول بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور حفظ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو 3 سال کا ایک عرصہ بنائے ہیں. 4th اسٹینڈرڈ یا 5th اسٹینڈرڈ سے ڈراپ آؤٹس ہو کے حفظ ختم کر کے پھر سے تعلیم شروع کر سکتے ہیں.
इससे कुछ नुकसान उनकी दुनियाई तालीम में भी नहीं होगा और आखिरत की तालीम में भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शोबा 8-9 साल से हिफ्स का अल्हम्दुलिल्लाह एक बुलंदियों पे आया है, जो सिर्फ फजर से लेकर ईशान तक करता है। आज जो दो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं उनके लिए कुछ आप लोगों ने किस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में हम कम क्वांटिटी यानी कि कम बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं। जैसे कि हमारे हिफ्स के शोबे में तकरीबन 35 से 40 बच्चे ही है, तो उस शोबे में हम बच्चों को एनर्जेटिक लाने के लिए हम उनको जैसे हिफ्स खत्म करेंगे उनके लिए एक उम्रे के पैकेज में एक प्रॉपर एक सेटअप किए हैं हम, तो इससे बच्चों के अंदर जज्बा आता है। ऐसे बच्चे जो इंटरनेशनल स्कूल से भी हमारे मदरसों में आके दाखिले ले रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बच्चे के इंटरव्यू में सुना कि वॉलविंड स्कूल्स का एक बच्चा है, और एक ऐसे बेहतरीन स्कूल्स जो है वहां से बच्चे आ रहे हैं हमारे मदरसे में दाखिल हो रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेस, बड़े अच्छे घराने के बच्चे जो हाफिज कुरान बनाना चाहते थे नहीं बना पाए, तो वो सब आगे आ रहे हैं। तो हाँ, इसमें वालिद और वालिदैन की बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि अपने बच्चों को फजर में उठाना, उनको तैयार करना, मदरसे में लाके छोड़ना उन लोगों को। तो इस वजह से हमारी कमेटी ने और असातिज़ा ने और हजरत हमारे मुफ्ती ज़हीर साहब और हमारी बड़ी कमेटी मिलकर तय किए हैं कि वालिदा के लिए कुछ दे। तो इसमें हमने तोहफे, गोल्ड रिंग और वालिद के लिए एक प्रॉपर शाया, आप जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम में देखा, और बच्चों के लिए एक उम्रे का पैकेज हमारे तरफ से करते हैं। का जो हालात हैं शहर के नौजवान वैसे जा रहे हैं, क्राइम बढ़ नजर है, तो आपकी कमेटी की जानब से कोई ऐसा कदम लगाया गया है कि माहौल को चेंज करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में, मक्का मस्जिद नील संदर में 3 कमेटियों का काम है। एक कमेटी मुकम्मल मस्जिद की जिम्मेदारी देखती है, एक हमारी कमेटी है वो मदरसे की, जो हम एक अलग से एक कमेटी जामिया मस्जिदुल उलूम से, एक और कमेटी है मदनी दस्तरखान बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मिलकर एक एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने सवाल किया उस पर वो मेहनत कर रहे हैं। हम अलग अलग कामों को बांट कर हमारे मोहल्ले के नौजवान इस तरीके से, और बहुत सारे दूसरे मसाजिद भी है, जैसे कि हमारी अकबरी मस्जिद है, आयशा मस्जिद है, यूसुफ मस्जिद, अलग अलग इदारों से अलग अलग तरीकों से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वजह ये है हमारा इस मोहल्ले पे बहुत ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ पे मेहनत की बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मौजूदा हालात जैसे कि नशे और कई तरीक़ों की चीज़ों में नौजवान मुब्तला हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो उसके लिए हम इस मस्जिद में एक तरतीब बनाए हैं। स्कूल के बच्चे, भले स्कूल के बच्चे स्कूल भी जा रहे हो, उनकी भी एक्टिविटीज़ कुछ अलग है। कोई स्मोकिंग के एडिक्ट हो रहे हैं, कोई गुटखा एडिक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एक फ्लोर मस्जिद का के मुकम्मल, हम एक फ्लोर में 5 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक बच्चे जितने भी स्कूल्स के हैं अपने घरों से यहाँ पे आए, प्रॉपर एक क्लास सेटअप करके उनको एक बेंचेस वगैरह दिए जाएगा। यहाँ पे मस्जिद में रह सकते हैं, मस्जिद के माहौल में रह सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर एक गाइडेंस, उनका एक टीचर रहेगा, उनकी गाइडियन करेगा। तो इनसे इंशाल्लाह ऐसे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। एक और हमारी एक्टिविटी है जो हम फुटबॉल में ग्रो कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पास ही मस्जिद के पास में एक ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पे हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी एक एक्टिविटी फुटबॉल की मदनी दस्तरखान की ग्रुप की तरफ से हो रहा है। तो इस तरीके का हम बहुत सारे कामों में एक्टिविटीज एक निज़ाम बनाए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मौला अली, मैं एक बिजनेसमैन है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से ताजिर कर लेता हूँ। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से एक मैसेज देना चाहता हूँ। हर आदमी ज्यादातर क्या समझता है कि मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ना, जो दुनियाई तालीम नहीं करते वो बच्चे पढ़ना, ये ज्यादातर जहन सबका ये है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक जॉइंट फैमिली से एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेसमैन है। मैं मेरे बच्चे को ये तालीम दिया। आज की दुनियाई माहौल बहुत खराब है। मेरे हर भाइयों से दरख्वास्त है, अपने अपने बच्चों को दीन में लगाओ, मदरसे में लगाओ, किसी इमाम साहब के जोड़ में लगाओ। बाहर खराब होने से अच्छा उन्हें इस रास्ते में रहा तो बचने के चांसेस 90% है। आज माहौल इतना खराब है, हर एक आदमी जानता है कि माहौल कितना खराब होगा बाहर। तो मेरे भाइयों से दरख्वास्त है, हर अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों के बच्चे को
जो अच्छा पढ़ रहा है स्कूल में, मैं खुद मेरे बच्चे को एक बॉलविन स्कूल से निकाल को इसमें लगाया कि ताकि इसकी फ्यूचर सेफ रहे। आज की हालत बहुत खराब है, इससे सब वाकिफ हैं। मैं बस ये इतना जानना। क्या फैसिलिटीज थी बच्चों के लिए, किस तरह से जो है चार्जेस थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब ये जो बच्चा मेरा हाफिज हुआ है, इसकी एक ही शर्त थी कि ये घर में ही आके सोना चाहता था, इसको बाहर सोने की ये नहीं थी। अल्लाह का शुक्र, ऐसा मदरसा हमारे मोहल्ले में है जो सवेरे फजर के बाद से शुरू होता है, ईशान के बाद खत्म होता है। तो ये भी एक सहूलत है। आपको दूसरे जगह सब ज्यादातर आपको ख़याम तयाम के मिलती, जहाँ बच्चा जाके सोता है और उधर ही रहकर उसका हिफ्स मुकम्मिल होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र, हमारे खुद के मोहल्ले में ये चीज सहूलत है। आप बच्चों को सवेरे भेज सकते हैं, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, सब इंतजाम इधर है। सिर्फ शाम का एक खाना आके घर में खाता बच्चा। कितना माहाना चार्ज करते सर? महाना का कोई तय नहीं है, जो जितनी उसकी ये है वो दे सकता है। अगर से खुदा ना खास्ता उसकी कुछ भी ये नहीं भी है तो आप हजरत से या कमेटी से इतला करें तो इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम हो जाता है। पैसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ बच्चे की इल्म की ये है, इधर सिर्फ बच्चे का इल्म के ऊपर जोर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद जावेद अहमद हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। हमारा बच्चा बहुत दिमाग किया था, हमारे इमाम साहब बहुत मेहनत करे, उसे बच्चे के सका ये करे, हमारे बच्चे के वास्ते बहुत कोशिश करे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेटी वालों का, हर एक मस्जिद के जिम्मेदारों का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत हमारे इमाम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा बच्चा भी मेहनत किया, इसका भी शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह यहाँ तक हमारे वास्ते एक इज्जत दिलाया, अल्लाह दीन में, दुनिया में। अल्लाह हर बच्चों को भी इसी तरीके से, हर माँ बाप को भी ऐसे बच्चों को ये करें दे, हर बच्चों को ला को छोड़ें दे। यहाँ बहुत सहूलत करती काम करे। ऐसे माहौल में आपने बच्चे को मदरसे में जमाया, पढ़ाया, या किस वजह से? इससे क्या होता है, इसमें दीन भी मिलता है, दुनिया भी मिलता है। क्या दीन का हिफ्ज कर अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह हमें इंशाअल्लाह तिजारत कराना चाह रही, अल्लाह उसमें भी कामयाब करेंगे। मैं और एक हमारा बच्चा है, ये बच्चे को भी इंशाअल्लाह उन्होंने भी 3 पारे हिफ्ज कर को ही उनको भी पढ़ा रही हैं, JSLC का एग्जाम दे रही, उनकी दुनिया के साथ साथ उनको हाफिज या आलिम कराने की भी इंशाअल्लाह हमें कोशिश करें। कमेटी वालों के लिए क्या मैसेज होगा? बहुत बहुत हमारे बच्चों को, सबको बहुत मदद करे, खासकर हमारे बच्चे के वास्ते बहुत हिम्मत दी है, बहुत कोशिश करे, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।